Hello student, hope you all are doing well and preparing for your political science exam term 1. Today I am going to explain you about the United Nations and its organizations. It's very important topic which we are going to cover in this term 1. So United Nations, as we all know, United Nations organization, or it is also known as the UN. It is an organization which provide the platform to all the independent nations to discuss their problems. That is the international platform. First of all, there is a question, why did we need the international organization? हमें क्यों चाहिए भी international organizations? So international organizations are required to discuss all such kind of problems and to stop the wars. In the First World War, the First World War took place during the 1914 to 1918. It was very destructive, and after that, when this World War came to an end, First World War came to an end, all the countries in the world, they thought about there should be an organization, there should be an international organization which can solve the disputes amongst the states, so that there should not be the situation of war. That is why League of Nations was formed. League of Nations, that is also an international organization. So League of Nations, the main aim was to prevent, to avoid the wars. Unfortunately, this League of Nations failed to achieve its aim, and Second World War broke out. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई, एंड लीग ऑफ नेशन जो थी अपने एम को अचीव नहीं कर पाई, एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई. Second World War, as we all know, this was more destructive than the previous one. First World War से भी ज़्यादा destruction इसमें हुई थी. तो अब इसके बाद this 1919 का First World War came to an end, and 1939 Second World War broke out. It lasted till 1945. 1945, when this war came to an end, Second World War came to an end, again there was the need. The countries, independent countries, they thought about the another international organization which should be more powerful than the previous one. League of Nations. That is why there was the idea of United Nations was there. United Nations was formed in October 1945. 24th October, that is celebrated as the United Nations Day. फाउंडर डे मनाया जाता है इसे 24 अक्टूबर को. सो 1945 में यूनाइटेड नेशन बनाया गया. यूनाइटेड नेशन इज़ ऑल्सो नोन एज द सक्सेसर ऑफ द लीग ऑफ नेशन, क्योंकि लीग ऑफ नेशन को आगे जो है कि लेके आने वाला जो था कि अब ये यूनाइटेड नेशन था, इसका सक्सेसर था. सो 1945 में इसे बनाया गया, एंड दिस वॉज द साइनिंग ऑफ अ चार्टर, यूनाइटेड नेशन चार्टर, बाय 51 नेशंस. 51 फाउंडर मेंबर्स थे जिन्होंने इस पर साइन किए थे, और ये यूनाइटेड नेशन बनाया गया था 1945 में. जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड, दैट इज इंडिया वॉज द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन 1945 इटसेल्फ. इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर 1945 में ही बन गया था. दैट वाज ऑफ 30th अक्टूबर. 30th अक्टूबर 1945 को इंडिया भी इसका मेंबर बना. तो यूनाइटेड नेशन का अगर ये देखा जाए तो व्हाट वाज द एम, क्या ऑब्जेक्टिव था, क्यों बनाया गया था यूनाइटेड नेशन? सबसे पहले होगा टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड. सो द अनदर वर्ल्ड वॉर शुड नॉट बी देयर, कि अब वर्ल्ड में कोई और वॉर नहीं होनी चाहिए, और इसलिए जो है कि यूनाइटेड नेशन बनाया गया था. एंड दैट इज इफ़ देयर आर द डिस्प्यूट्स, इफ़ देयर आर द डिफरेंसेस अमंग्स द नेशन, अमंग्स द स्टेट, इट शुड बी सॉल्व्ड. इट शुड नॉट बी टर्न्ड इनटू अ वॉर. वो जो है कि वॉर की शक्ल ना ले लें, उससे पहले ही उसे विद द मीडिएशन, विद द डिप्लोमेटिक टॉक्स, ये जो है कि ये पहले ही ये सॉल्व हो जाने चाहिए, वॉर नहीं होनी चाहिए. तो मेन जो था दैट वाज टू प्रिवेंट द वॉर, टू अवॉइड द वॉर, एंड टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड.
एंड आफ्टर दिस नाउ इन 2011 तक आते आते मीन्स 51 फाउंडर मेंबर से जब ये स्टार्ट हुआ था कि इन 2011 तक आते आते इसमें 193 मेंबर्स हो गए यूनाइटेड नेशन के। एंड दिस यूनाइटेड नेशन में जो है कि अगर हम देखें कि यूनाइटेड नेशन बना तो लिया गया, अब इसके जो है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, किस तरह से ये काम करता है। सो देयर आर द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जिसमें सबसे पहले हम कहेंगे दैट इज़ द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली ऑल द मेंबर नेशंस, जितने भी 193 या 190 जितने भी मेंबर्स होंगे ये सारे जो है जनरल असेंबली के मेंबर्स भी होंगे। सो दैट इज द दिस जनरल असेंबली में हर एक इन मेंबर जो है यूनाइटेड नेशन का इसका भी मेंबर होगा। एंड नंबर 2 द सेकेंड ऑर्गन इज द सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्योरिटी काउंसिल इज having 15 members, इसके 15 members हैं, 5 permanent members and 10 non-permanent members. Questions regarding security council is very common in the examination. आपको बहुत बार ये questions आते हैं, तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 members है, 5 permanent and 10 non-permanent. 5 permanent members कौन कौन से, permanent as नाम से ही पता चल रहा है कि वो तो permanent है, उनको तो हटाया ही नहीं जा सकता। तो इनमें कौन कौन से है, नंबर 1 is US, नंबर 2 is Russia, then China, फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम। पर इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हेन दिस यूएसएसआर वाज डिसइंटीग्रेटेड द सीट ऑफ यूएसएसआर वाज गिवन टू रशिया एज द सक्सेसर, क्योंकि अब रशिया जो है यूएसएसआर को रिप्रेजेंट करता है बिकॉज यूएसएसआर इज डिसइंटीग्रेटेड। तो अब अगर हमसे पूछा जाएगा कि इसके 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं, तो इसमें रशिया आएगा, यूएसएसआर नहीं आएगा। एट द इनिशियल स्टेज जब ये बनाया गया था उस टाइम यूएसएसआर इसका मेंबर था, परमानेंट मेंबर। नाउ दिस सीट इज गिवन टू रशिया। So these are the 5 permanent members and they are also having the veto power. Veto power जो है ये इनके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। Veto power is that is the negative vote. In the Security Council, 10 non-permanent members are also there and they are selected from the General Assembly फॉर द टर्म ऑफ 2 years, 2 साल के लिए जो है कि यहाँ पर मेंबरशिप मिलती है एंड आफ्टर दैट द अनदर 10 मेंबर्स विल बी सिलेक्टेड। तो इस तरह से बाकी सारे मेंबर्स जो हैं, ऑल द अदर मेंबर्स इन द जनरल असेंबली, द मेंबर स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, दे गेट देयर चांस टू बी द मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। लेकिन ये 5 परमानेंट जो है वो एज इट इज़ रहते हैं। अब इसमें अगर नेगेटिव मेंबर कहा जाएगा तो नेगेटिव वोट या वीटो पावर कहा जाएगा, तो व्हाट इज़ दैट? वीटो पावर इज़ दैट बिकॉज इन द सिक्योरिटी काउंसिल वट एवर द डिसीजंस आर टेकन दे आर टेकन बाय द मेजॉरिटी। मोस्टली यही होता है कि डेमोक्रेटिक वे में अगर हम देखेंगे तो मेजॉरिटी से ही डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं उन 5 परमानेंट मेंबर्स की येस चाहिए, अप्रूवल चाहिए, कंसेंट चाहिए। इफ़ for any of the decision any permanent member give a negative vote, तो वो decision जो है maybe all the other members are in favor of that decision and if one member is giving the negative vote तो वो जो डिसीजन होगा वो वहाँ पर होल्ड कर लिया जाएगा एंड दैट कैन बी कैंसिल। इसे हम कहते हैं वीटो पावर। तो ये सिक्योरिटी काउंसिल में आपने याद रखना है, देयर आर 15 मेंबर्स, 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। 5 परमानेंट मेंबर्स जो है इनको परमानेंट मेंबरशिप क्यों दी गई? बिकॉज दीज आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दीज वर एमर्ज द वेरी बिग पावर्स। ये जो है कि बड़ी पावरफुल कंट्रीज़ की तरह जो एमर्ज हुए थे एंड दे ऑल्सो प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मिंग at the formation of the United Nations. They made themselves as the permanent members. These were the victors इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इसलिए यहाँ पर जो है कि इनको परमानेंट मेंबरशिप दी गई थी। तो जितने भी हमारे वॉर एंड पीस से रिलेटेड मैटर्स होते हैं, देन द डिस्प्यूट्स अमंग्स द मेंबर स्टेट्स, उनके बीच में जो भी डिसीजन होगा या डिसीजन लिया जाना है वो सारे जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल में किए जाते हैं। तो ये हमारे 2 ऑर्गन्स हो गए यूनाइटेड नेशन के। एंड थर्ड ऑर्गन कैन बी द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, International Court of Justice, and there are the 15 judges, those are elected for the term of 9 years। 9 years के लिए यहाँ पर 15 जजेस को यहाँ सिलेक्ट किया जाता है या इलेक्ट किया जाता है। ठीक है। एंड नंबर 4 इज़ द फोर्थ ऑर्गन इज़ द सेक्रेटरीट। जितने भी लोग यहाँ पे इंटरनेशनल स्टाफ है जो इसको प्रिंसिपल डिफरेंट ऑर्गन्स को सर्व करता है, तो यहाँ आ जाता है सेक्रेटरीट।
and the economic and number 5 fifth organ is economic and social council. नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ से 50 इसमें से जनरल असेंबली में से ही द 54 मेंबर स्टेट जो होंगे उन्हें यहाँ पर सीट मिलती है. एंड दिस इज इकोनॉमिक एंड social council. And last one, which is the trusteeship council, it was suspended in 1994 में इसे सस्पेंड कर दिया गया था. लेकिन मैं उसका नाम इसलिए बता रही हूँ कि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि यूनाइटेड नेशन का जो कि अब सस्पेंड किया जा चुका है. तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रस्टीशिप काउंसिल भी था एंड इन 1994 इट वाज सस्पेंडेड. सो देयर आर द डिफरेंट ऑर्गन्स जिसमें आएगा जनरल असेंबली, this can be security council, international court of justice, secretariat, this economic and social council and trusteeship council which is now suspended. ये अब suspend हो चुका है. ठीक है, तो अब ये जो पॉइंट्स आएंगे ये इसके आगे डिफरेंट ऑर्गन्स एंड विद दैट इट ऑल्सो वर्क्स विद द डिफरेंट एजेंसीज. इसके साथ और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या हम कहेंगे कि विद इन द यूनाइटेड नेशन देयर आर द डिफरेंट एजेंसीज जिसमें हमने बहुत सारे नाम सुने हुए हैं. दे फॉर द डिफरेंट वर्क्स जैसे WHO जो आजकल बहुत है कि ड्यू टू द पेंडेमिक ये इसको बहुत ज़्यादा हम नाम सुन रहे हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO है, ILO है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है एंड UNHRC है, UNHCR है. तो ये सारे जितने भी हैं ये सारी इसकी जितने भी एजेंसीज हैं इनके बारे में आप सब ने पढ़ना है. तो व्हाट आर द डिफरेंट एम्स ऑफ दैट, व्हाट आर द लोगोज ऑफ दीज एजेंसीज, इनके बारे में एक एक सारा ध्यान से आपने पढ़ना है. इसमें से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आने के चांसेस है. तो यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड व्हाट इज़ द डिफरेंट प्रोसेसेस एंड वी नीड द रिफॉर्म्स इन दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. तो इस रिफॉर्म्स के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. दिस पार्ट इज द नंबर 2 यूनाइटेड नेशंस वीडियो पार्ट 2. तो which type of reforms are required in the United Nations, कौन से है. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द सेक्रेटरी जनरल जो इसे रिप्रेजेंट करता है इस पूरी यूनाइटेड नेशन बॉडी को, दैट इज़ द सेक्रेटरी जनरल. तो सेक्रेटरी जनरल एट प्रेजेंट देयर इज़ सेक्रेटरी जनरल इसके जो होंगे एंटोनियो गुटेरेस है एंड ही इज़ फ्रॉम पोर्तुगाल. ये आपको याद होना चाहिए. ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.